Hello students. Today we are going to start chapter number 2 of biology, that is microorganisms, friend and foe. You know students that we see many organisms around us. They are multicellular, like different types of animals. Okay? But there are some organisms that exist but we cannot see them because they are unicellular. They are made up of only one cell. And that is why they are called microorganisms or microbes. They can only be seen with the help of microscope. But of course, they really play a very important role in our life, though they cannot be seen. And that is why this chapter is based on it, and that is why it is named as friend and foe. Friend is friend, and foe is enemy. So they are actually our friend also as well as enemy also. As you can see, one very good example nowadays, that is corona. It's again a virus. It is a microorganism which we cannot see, but still we are really facing a big problem. And I hope you all are safe also at home. So see children, under this category, microorganisms are basically divided into four, or you can say five different categories, that is bacteria, fungi, protozoa, algae, and one more they have not written over here, but it is virus. So five broadly categories are there of microorganisms. We are going to learn them one by one. So first of all, about bacteria. आई एम गोइंग लिटिल बिट जनरल बिकॉज इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो बहुत ही कम हैं, तो मैं थोड़ा सा बता के एक्स्ट्रा चलूँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा सुन लीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अगर ये बोला जाए कि दे आर ओमनी प्रेजेंट, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो हमें मिलते हैं, जैसे कि वॉल्केनोज, हॉट स्प्रिंग्स, then you can say bottom of the sea or oceans, you can say, then ice, snow. हर वो जगह जहाँ हम सोच नहीं सकते वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर वी कॉल देम ओमनी प्रेजेंट. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, जब बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं मिल पाते. ठीक है, so you can see here it is written also, it is ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. Then they are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. Yes, as you can see also, फंगस जब ब्रेड पे स्प्रेड हो जाती है, उसकी कॉलोनीज़ हो जाती हैं, तो वो हमें विजिबल होती है, वो हमें दिखने लगती है. सो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनीज ऑफ फंगस. ठीक है, देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का पिक्चर आपको दिख रहा है. स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर ऑफ मैनी शेप्स. कॉमा शेप्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है, राउंडेड होते हैं. दे आर इन मैनी शेप्स. ठीक है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, इन एयर, इन वाटर, एवरीवेयर, एंड दे आर बोथ harmful and useful to us. Bacteria, basically they are quite helpful to us in different ways. अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. कर्ड जो सेट होता है वो विच बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया उसमें हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो हेल्प करता है इस फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल विच आई कैन गिव यू. देन अगर हम हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया कॉज सो मैनी डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. देयर आर सो मैनी बैक्टीरियल डिजीजेज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, cholera. There are some common diseases which are caused by bacteria. Then come to fungus. Fungus is again, fungus can live freely also, fungus can live in colonies also. तो राइजोपस इज़ अ ब्रेड मोल्ड. ब्रेड फंगस होती है जो ब्रेड पे फैलती है. ठीक है, ईस्ट इज़ द ओनली यूनिसेलुलर फंगस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये.
ये पता होना चाहिए आपको, जो ईस्ट होती है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है, बाकी जितने भी फंगस होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एंड अगेन दे आर ऑल्सो फाउंड एवरीवेयर। एंड बेसिकली जो फंगस होती है ये रिप्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो इसके जो स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड होते हैं, और जहाँ ये स्पोर्स सेटल होते हैं, अगर उनको वहाँ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो वहाँ पे फैलने लगते हैं इन कॉलोनीज़। और जब ये मल्टीप्लाई होकर इतने ज़्यादा फैल जाते हैं तो वो विजिबल भी होते हैं। ओके, देन अगेन फंगस में भी दे आर गुड ऑल्सो एज वेल एज बैड ऑल्सो। अगर मैं गुड की बात करूँ, एडवांटेज की बात करूँ, तो फंगस से हमें, फंगस एंड बैक्टीरिया बोथ आर सेप्रोट्रॉफ्स, डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पे बेसिकली रहते हैं। तो फंगस जो होता है वो क्लीनर होता है, एनवायरनमेंट क्लीन करने में हेल्प करता है। एंड फंगस से हमें एंटीबायोटिक्स भी मिलते हैं। ओके, और अगर बुरा कहने के लिए है तो डिजीजेस, अगेन इट इज़ डिजीज कॉजिंग, ये इसका डिसएडवांटेज है, इट्स अ हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ फंगस।